Dear students, welcome to you in 11th lecture of metals and non-metals. Topics are corrosion and corrode, corrosion of copper and silver, and rusting of iron. हम इससे पहले पढ़ेंगे corrosion के बारे में. इससे पहले आप देखेंगे chemical reactions और equations के वीडियोस में हमने corrosion के बारे में बातचीत की. हालांकि इसके प्रिवेंशन के बारे में भी बातचीत की. यहाँ डिटेल में देखते हैं corrosion के बारे में. What is corrosion? आप घरों में देखते हैं जो आयरन आर्टिकल्स हैं, लाइक आयरन ग्रिल्स, आयरन गेट एंड डिफरेंट आयरन आर्टिकल्स. इनमें क्या होता है, स्लोली एंड स्लोली इनकी जो अपर लेयर है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हुआ करती है और वो नॉन स्टिकी लेयर में चेंज हुआ करती है. ये नॉन स्टिकी लेयर धीमे धीमे आपकी आयरन डस्ट के रूप में अलग होती जाती है और जो भीतर का आयरन है वो भी आपका नॉन स्टिकी पार्ट्स में बदल जाता है. इन द सेम वे यू ऑब्जर्व कॉपर आर्टिकल्स प्रेजेंट इन योर होम. कॉपर आर्टिकल्स तांबे की इसे कहते हैं. उनको यदि लंबे समय तक यूज ना करें तो देखते हैं उनके ऊपर ग्रीनिश लेयर आ जाती है. In the same way, सिल्वर आर्टिकल्स देखें, सिल्वर की ज्वेलरी है उस पर भी जो है ब्लैकिश कलर आ जाती है, उसकी शाइनिंग कम होने लगती है. ये सब मालूम क्यों है? ड्यू टू कोरोजन. तो कोरोजन क्या हमारे पास, ध्यान दीजिएगा. पहली बात तो ध्यान दें, इट इज अनडिजायरेबल प्रोसेस. हम इसको चाहते नहीं है क्योंकि इससे क्या हो रहा है, हमारा मेटल जो है डिस्ट्रॉय हो रहा है. तो आइए इसको देखते हैं, इसकी डेफिनेशन हम लोग. ठीक, दे आर स्लोली एंड स्लोली डिस्ट्रक्शन ऑफ upper layer of a metal by the effect of moisture, air, acids or other chemicals. Is called corrosion. Clear? And the metal said to be corrode. तो आपने क्या देखा, इट इज a slow process, very slow process. क्योंकि रस्टिंग कोई एक दिन में नहीं हो जाती आयरन में. ठीक है ना, ये स्लो प्रोसेस है. देयर वेरी स्लो रिएक्शंस. और कहाँ होती है, अपर लेयर ऑफ मेटल्स पर. ठीक, बाय द इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर, एयर, एसिड और अदर केमिकल्स, उनके इफेक्ट से ये लेयर बनती है. और जब ये मेटल खराब होने लगती है तो हम कहते हैं मेटल इज कोरोड. क्लियर? तो this corrosion is undesirable process in which metal is distracted slowly and slowly. Clear? Example, rusting of iron,
greenish layer on copper articles black oxide on या black chemicals on silver. That is tarnish of silver. आइए इनको देखते हैं हम लोग. Examples first taken in copper and silver. Corrosion of copper. देखिए जब लंबे समय तक कॉपर को यूज नहीं करते हैं, कॉपर आर्टिकल्स को, उनकी सरफेस पर क्या होता है, मॉइस्चर, एयर, और एयर में प्रेजेंस होती है कार्बन डाइऑक्साइड. They react with copper and form a layer of basic copper carbonate on the surface. This is greenish layer. Copper particles react on its surface by action of moisture, oxygen and carbon dioxide to form greenish layer of basic copper carbonate. Like this is copper reacts with water, carbon dioxide and oxygen to form copper hydroxide and copper carbonate. The addition product of both is called basic copper carbonate. Clear? This is H2O है यहाँ पर. This moisture, CO2, O2, all three present in air. They react with copper. You balance the reaction by multiplying two copper. ये कॉपर के ऊपर ग्रीनिश लेयर होती है, इससे कॉपर धीमे धीमे आपका नष्ट होता है. इन द सेम वे corrosion of silver. यहाँ हमारे एटमॉस्फेयर में H2S गैस, SO2 गैस, ये पॉल्यूशंस के रूप में मौजूद रहती है. And they react with silver jewelry to decrease its luster due to formation of silver sulfide. H2S, SO2 present in air as pollutant. These chemicals
with silver to form silver sulfite of black color, by which its luster decreases. They are really silver articles like silver jewelry reacts with like H2S gas to form silver sulfite in this way. Clear? It is a black color. It is called silver sulfite. It decreases a luster of brightness of silver. Now we go rusting of iron. What is rusting? Really, iron reacts with oxygen and moisture of air to form hydrated ferric oxide, which forms non-sticky layer on the iron surface, by which iron surface destroys like dust. Iron reacts on its surface with O2 and moisture of air to form a non-sticky layer of hydrated ferric oxide. Formula is this is Fe2O3.XH2. It is called rust. Clear? It destroys iron. ये लेयर जो है डस्ट के रूप में अलग हटती रहती है और आगे आयरन आपका धीमे धीमे रिएक्ट होता रहता है और गायब होता रहता है. What's their reaction? They are really O2 reacts of air to form ferric oxide. Iron on its surface reacts with oxygen of air to form ferric oxide in this way. Clear? Now, this ferric oxide reacts with moisture to form hydrated ferric oxide, which is called rust of iron. Clear? अब ये डस्ट आपका एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में, दोनों की प्रेजेंस में होता है. ये बात हम कैसे प्रूव करें? इसको हम एक एक्टिविटी से देखते हैं. ये प्रूव बाय एक्टिविटी.
you take three containers and you take iron nails. These are iron nails. Clear? In this way. Take iron nails in each container. These are all are iron nails. They are also. इसको A, B और C से हम लोग मेंशन करते हैं. Clear? You take distilled water. थोड़ा पार्ट इसका ऊपर रखा है एयर में हम लोगों ने, और ये हम लोगों ने डिस्टिल्ड वाटर या बॉइल्ड वाटर ले लिया. बॉइल्ड और डिस्टिल्ड वाटर. यहां पर हम लोगों ने वाटर लिया, इसको पूरा डिप कर दिया. और यहां पर वाटर नहीं लिया, यहां पर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लिया. इट इज ए ड्राइंग एजेंट. और यहां एक कॉर्क से इसको बंद कर दिया. टेकन इन कॉर्क. ये क्या है? कॉर्क. इसमें हम लोग थोड़ा सा ऑयल मिलाते हैं. वाटर प्लस ऑयल. You know oil floats on the surface of water. So what happens? The oil floats on this surface. This is oil. यहां पर वाटर नहीं लिया. अब देखिए क्या होगा. आप इसमें देखेंगे आफ्टर सम टाइम, छोड़ दीजिए 2-4 दिन के लिए इसको. यहां देखेंगे आप कि डस्ट की लेयर आ जाएगी. ठीक है ना. ये आपका रस्टिंग हो जाएगा हमारे पास में. यहां पर ये लेयर ऑफ डस्ट आफ्टर सम टाइम. ठीक है ना. रस्टिंग occurs. Hence no rusting. Hence also no rusting. क्या कंक्लूजन निकला आपका? यहां पर क्या था, ध्यान दीजिएगा. वाटर मिला इसको आपका. ठीक है. मॉइस्चर मिल रहा है. उसको बॉयल किया, CO2 निकाल दी, बट यहां एयर फील्ड है हमारे पास, तो ऑक्सीजन मिल रही है, मॉइस्चर मिल रहा है, और रस्टिंग हुई. रस्टिंग लेयर आ. यहां भी वाटर को बॉयल करते हैं पहले हमारे पास में, और फिर रखा नेवर. बॉयल वाटर करने से क्या हुआ, उसकी O2 बाहर निकल गई, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, एंड यू ऐड ऑयल. ऑयल क्या करेगा? फ्लोट्स ऑन द सरफेस. इट प्रिवेंट्स डिसॉल्विंग ऑफ O2 इन एयर. अब यहां जो O2 है वो एयर में डिसॉल्व नहीं होगी, तो यहां पर इसको वाटर तो मिल रहा है बट नो ऑक्सीजन, सो देयर नो रस्टिंग. यहां क्या है? एयर है, O2 है. यहां O2 नहीं था, वाटर है, और यहां एयर मिल रही है इसको O2. ठीक है ना. मगर ये ड्राइंग रिएजेंट है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड. ये क्या करता है? इट एब्जॉर्ब्स वाटर, इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर. तो पूरा यहां का मॉइस्चर ये अपने पास खींच लेगा. इन दिस वे
This is moisture, and it forms hydrated calcium chloride. It is a drying agent है, ड्राई कर देता है सब्सटेंस। तो यहाँ पर जो भी मॉइस्चर होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, खाली O2 बचेगी। ड्यू टू absence of moisture there are no rust। तो आपने क्या पाया? For rusting O2 and moisture both are required। अब यह क्वेश्चन उठता है, वाई गोल्ड एंड प्लेटिनम, ठीक है ना, आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ज्वेलरी। ज्वेलरी में इनको क्यों यूज किया जाता है? सबसे पहले आपको मालूम है, गोल्ड एंड प्लेटिनम आर वेरी लो रिएक्टिव मेटल्स। These are called noble metals and they do not react with the oxygen। ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं होते हैं, ऑक्साइड नहीं बनाते, यानी इनमें कोरोजन होता ही नहीं है। यही रीजन है, ड्यू टू absence of corrosion these are expensive metals and used for jewelry। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। Au and platinum are metals of very low reactivity and not reacted with oxygen or air। There is no corrosion। इनमें corrosion होता ही नहीं है। That is the reason these metals are most important for jewelry। एक आपकी बुक में जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये given metallic oxides are heated with zinc, mercury and copper। As given in टेबल दे रखा गया है और पूछा गया है कि यहाँ पर क्या रिएक्शन होंगे, ठीक है ना। ट्रेस पॉसिबल रिएक्शंस। Magnesium metal taken and copper metal। Their oxides are taken zinc oxide and their magnesium oxide and their copper oxide।
इन ऑक्साइड्स को इन मेटल्स के साथ हीट किया जाता है, क्या पॉसिबिलिटी है वो आपको बतानी है। जिंक ऑक्साइड भाई जिंक से रिएक्ट करेगा नहीं, नो रिएक्शन, ये तो सीधी सी बात है। मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम से नहीं रिएक्ट करेगा, नो रिएक्शन। क्यूप्रिक ऑक्साइड कॉपर से नहीं रिएक्ट करेगा, नो रिएक्शन। एक बात तो आपको ये मालूम। नाउ यू गो इन एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज में देखें इनका क्या पोजीशन। जब एक्टिविटी सीरीज देखेंगे आप तो आप पाएंगे मैग्नीशियम टॉप पर, उसके बाद जिंक है, देन कॉपर। मैग्नीशियम इज highly reactive than zinc and copper. Zinc is reactive than copper. ठीक? Copper is least reactive in all of three metals. यहाँ पर क्या होगा? Zinc oxide जब मैग्नीशियम से कहेगा मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव, तो मैग्नीशियम जिंक को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड और जिंक अलग हो जाएगा। So there will be displacement reaction. Clear? And copper is less reactive than zinc. It does not react. There no reaction. In the same way, magnesium oxide सबसे टॉप पर, ठीक है ना? दोनों से लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, तो कोई इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकते, तो there no reaction. And their reaction. रही बात कॉपर की, मैग्नीशियम जिंक both are more reactive than copper, so they displace copper from the copper oxides and give displacement reaction. So the displacement reaction and there also displacement reaction. अब बहुत सी बातें हैं कि अब कोरोजन से बचने का उपाय क्या है, इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या है, हाउ यू प्रिवेंट कोरोजन, ठीक? उसके लंबे तरीके हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसको आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें।